Good morning class. Today we are going to discuss about the ionic product of water. Students, talking about ionic product of water, you can define it as the product of molar concentration of H plus ion and molar concentration of OH minus ion. And students, we can also write it as the product of molar concentration of H3O plus ion and OH minus ion. Okay. So students, as you know that pure water is a poor conductor of electricity. So this basically shows that water is a weak electrolyte. And if we are assuming that the ionization process, so it self ionizes, that is water molecule self ionizes into H3O plus and OH minus ion. So students, for that the equilibrium, chemical equilibrium can be written as K equals molar concentration of H plus into OH minus upon molar concentration of H2O. Okay, and students, assume that we are taking the concentration of unionized water molecule, that is constant. Okay, we are taking it almost constant. So for that, what will happen, we can write the equilibrium equation as K H2O will be equal to molar concentration of product of molar concentration of H plus and OH minus. Okay, so as here there are two constants, so we can write down a new constant for it, that is Kw. So students, Kw, that is ionic product of water, will be equal to product of H plus and OH minus, or you can better write it as product of H3O plus and OH minus. Okay, so suppose students, we are considering a pure water, then for pure water what will happen, the concentration of H plus will be equal to concentration of OH minus, so value will be 10 to the power minus 7. Okay, so students, how we can write that value is 10 to the power minus 7, because at 285 degrees Celsius, or you can say 298 Kelvin, it is found that the ionic product of water is 1.008 into 10 to the power minus 14. However, for simplicity, we assume it as 1 into 10 to the power minus 14. That is, value of Kw is 10 to the power minus 14. So when we are considering a pure water, then molar concentration of H plus will be equal to molar concentration of OH minus, that is equal to 10 to the power minus 7. Okay. Now students, talking about the effect of temperature on Kw. So basically the ionic product of water increases with increase of temperature. अगर हम बात करें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, तो ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करता है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर स्केल दी हुई है और यहाँ पे Kw की वैल्यूज़ हैं. तो आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पे Kw इज़ इक्वल टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे Kw की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, Kw की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है. ओके, एंड स्टूडेंट्स, सपोज करिए हमें ये इक्वेशंस मिल गई है. अगर हमें अब देखना है कि जो कंसनट्रेशन है आयंस की एक्वा सॉल्यूशन में ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो अगर हम बात करते हैं कि कोई एसिड अगर ऐड किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो मोलर कंसनट्रेशन होगी H3O प्लस की, वो 10 टू द पावर माइनस 7 से ज़्यादा होगी. और अगर हम कोई बेस ऐड कर रहे हैं, तो जो मोलर कंसनट्रेशन होगी OH माइनस की, वो हमेशा क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 7 से ज़्यादा होगी. ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी. इस बेस पे हम जो pH के कन्वेंशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. pH के कन्वेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं. Kw की वैल्यू हम जानते हैं, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस. ठीक है, या हम इनकी अगर वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14. ये होता है एट 298 केल्विन. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो एसिडिटी या अल्कलिनिटी या किसी सॉल्यूशन की वो सफिशिएंट होती है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि H3O प्लस आयन कंसनट्रेशन कितना है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो प्रोडक्ट होता है H3O प्लस और OH माइनस का, वो हमेशा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 होगा. और जो कंसनट्रेशन है H3O प्लस आयन की, वो वेरी कर सकती है 10 टू द पावर 0 से लेके 10 टू द पावर माइनस 14 तक. ठीक है,
मोलैरिटी तक, ये हमें दिख रहा है। तो कोई सॉल्यूशन जो जिसमें कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन H2O प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोलर है, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.000025 मोलैरिटी। सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये जो मेथड है एक्सप्रेस करने का H2O प्लस आयन का वो बहुत एब्रप्ट है, मतलब हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो सोरेनसन थे उन्होंने 1909 में सजेस्ट किया एक कन्वीनियंट मेथड H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ pH, ठीक है। तो सोरेनसन ने ये मेथड बताया था कि हम कैसे H3O प्लस आयन के कंसंट्रेशन को pH के टर्म में एक्सप्रेस करें, और ये जो सिंबल था वो लिया गया था फ्रॉम डैनिश वर्ड पोटेंज डिहाइड्रोजन आयन। सो कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता रहता है कि pH का डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स pH का जो मतलब हम कह सकते हैं ये वर्ड किससे आया है, तो ये बना है पोटेंज डिहाइड्रोजन आयन से।